इस वक्त एक बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तारीख का ऐलान होने वाला है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस बस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और आपको अब हो चुकी है शुरू। सीधे ले चलते हैं चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां चुनाव की तारीखें, हिमाचल प्रदेश की चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। We meet today for a press conference that most of you have been awaiting and have also been guessing since morning also. October is a month with many festivals, and we are adding one more festival, that is the festival of democracy, to this month of October. अक्टूबर के इस त्योहार के माहौल में लोकतंत्र के त्योहार को भी हम लोग जोड़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें 18 साल से लेके 100 वर्ष तक के बुजुर्ग मतदाताओं का एक बहुत ही बहुरंगी इंद्रधनुष है। It's a fantastic rainbow of the voters ranging from 18 years to 100 plus, and we'll focus a bit on this rainbow. I would explain in the detail about this, but in the meantime, to move forward, the elections, when we conduct, we have three broad objectives. First is the elections have to be free, fair, inclusive, accessible, and inducement free. And the second major vertical is the voter, that the voting experience should be very, very comfortable. And thirdly, the maximum voter participation, especially of the young voters, urban voters, PWDs, and senior citizens. These four categories we intend to focus more, which I'll explain. भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष, प्रलोभन मुक्त, इंड्यूसमेंट फ्री तरीके से विधानसभा का आगामी निर्वाचन चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और हमारा प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, नए मतदाताओं सबकी भागीदारी बहुत ही सशक्त तरीके से आने वाले चुनावों में हों। Through the vast reach of the media, I would request first that interaction will start with the wish that our appeal is being heard by most of the voters and they will come out to participate wholeheartedly in this forthcoming festival of democracy. Before going into the mode of the elections, we have an extensive process of consultation. And the magnitude and scale of our elections is really awe-inspiring, as you all know. For the last few months, our entire team, which you are seeing here, has been working on organizing these elections, ranging from the electoral rolls to the management of logistics to various things which we will explain. Periodic reviews were done by them. The commission also went to the states where the elections are due, and we had detailed meetings with the DOs, with the SPs, and with all the enforcement agencies, chief secretaries, DGs, and everyone who is involved in either conduct of elections or in the enforcement side of this. We also simultaneously discussed the COVID situation, as it has been bothering in the last two rounds of elections. We had a detailed discussion with the Health Secretary, Union Health Secretary, and also with the Chief Secretaries and DGs of the concerned states, Health Secretaries. It doesn't seem to be that much of a concern now, but still, the states have been advised that they will continue to follow the five-fold strategy of test, track, treat, vaccinate, and follow the appropriate behavior. We have revised our guidelines, which are in this form, essentially saying that they have to follow the norms set by the Health Ministry and also the respective SDMAs in the states if there is any situation that warrants the tightening or the graded response to the COVID situation. Friends, the first and foremost thing in conducting an election is the electoral roll. A healthy, error-free electoral roll is the primary step, that is the base on which the entire elections are held. And the summary
special summary revision has just happened. The electoral rolls have been published in the concerned states. And during this exercise, the Commission has laid a special emphasis on registration of new age voters, women, transgenders, and persons with disabilities. In order to ensure a clean electoral roll, the photographically similar entries, PSCs, and demographically similar entries have been found through the use of software and field verification. They were circulated to all the DOs and also to the respective BLOs to do a field verification of those who are found to be in the demographically similar entries or the photo similar entries. The special proactive steps were taken for the registration of PWDs, old age, and also the third gender. In this, we took help of the welfare departments, respective departments. For example, the welfare department, whenever the question of the registration of PWDs came. So whomsoever they were giving scholarship, we just cross-checked that they are our voters. To address the issue of urban apathy, we found that there is generally an urban apathy. If I can give you an example, in the 2019 elections, general elections, and if we list all the, say, 7-8 districts where the voting has been least, 4 of them happen to be the metropolitan cities. It's all in our statistics book, which we have published. I am not naming them here, but we are focusing on the urban apathy very, very seriously. In this, our CEOs are signing the MOUs with the departments and with the industry and with the organizations who have more than 500 persons. And we have reached out to the colleges and the educational institutions. What is expected is that after the voting, if the nodal officers are appointed in these organizations with 500 plus voters, and we will try and persuade those voters after the elections, the leave-taking and non-voting voters, we will try and reach to them and say, please join next time. So that's a kind of a awareness which we will start. The Election Commission of India, in pursuance of the legal amendments, had made 4 dates, as you are all aware. And this, by virtue of this, there is every quarter, first of the every quarter, one can apply for the registration. And the new, now onwards, the electoral rolls will be updated every quarter. और निर्वाचन आयोग की इस पहल पर कानून में जो बदलाव किए गए, जिसके कारण 4 डेट्स में संभव है, और अब पोल गोइंग स्टेट्स में नामांकन के दिन तक भी अभी मतदाता में सूची में नाम जुड़वाया जा सकता है. तो इसमें यह भी आपके माध्यम से अनुरोध है कि अगर इतनी मेहनत करके नए वोटर्स को जोड़ने के लिए कमीशन ने और फील्ड स्टाफ ने मेहनत की है, तो उनको भी आगे बढ़ के वोट देने आना चाहिए. Friends, I'll also tell you how many specifically benefited by this amendment. I'll come to it and tell you. In an election, voters are our primary stakeholders, and therefore, even those who do not have a voter epic, by and large, we have now ensured that the voting epic card reaches everyone. It's being delivered even now, but by chance, if you don't have, there are these many, almost a dozen other documents through which one can vote. So one need not be worried. What is important is to come to the booth with any one of these, even if one doesn't have an epic. Now the next important thing is the polling station. And that's the next point at which we interact with the voter. The effort is to make the voting experience, it's quite protocol based, but we are still trying that the experience becomes far more enjoyable in the true spirit of the festival of the democracy. Our COs and DOs have been asked to identify the lowest polling percentage booth in each constituency. This is what we are doing to increase our awareness and persuade the voters to come and vote. And they are going personally
to the polling stations which are having the least percentage of voting below the average in their each respective constituencies. So they'll try and find out what is the issue, why there is an lesser percentage of voting in those particular booths. They'll try and bring them up to the level of the general voting in that particular constituency. Friends, कमीशन का एक दूसरा फोकस है जो हमेशा रहा है, उसमें आगे हर बार नई चीज जुड़ती है, वो ये है कि हर पोलिंग स्टेशन पर कुछ बेसिक सुविधाएं निश्चित रूप से उपलब्ध रहनी चाहिए। तो ये जितनी बेसिक सुविधाएं हम आपको स्लाइड के माध्यम से भी दिखा रहे हैं, एवरी पोलिंग स्टेशन वुड हैव ए रैंप which is accessible for the PWDs, drinking water, electricity, shade, and volunteers for the PWDs for the old age. So every polling station would be on a ground floor so that it is not problematic for anybody to climb. तो जितना भी कंफर्ट पोलिंग स्टेशन पे दे सकते हैं वो देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और इन इलेक्शंस में 100% सर्टिफिकेट डीओ से लिया जा रहा है कि सब पोलिंग स्टेशंस पर ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। फ्रेंड्स, कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे होंगे जिसमें जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा ही मैनेज्ड होंगे। ऑल पोलिंग पर्सनल एंड ऑल्सो इवन द सिक्योरिटी स्टाफ 100% women oriented. So this is our, every assembly would have at least one and more in certain pockets. So महिलाओं के सशक्तिकरण को दर्शाने का चुनावों के इस माध्यम से भी हम लोग एक बहुत सशक्त माध्यम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक्सपीरियंस भी एक बहुत अच्छा हो और साथ साथ एक सशक्तिकरण को भी वो प्रदर्शित कर सके। फ्रेंड्स, सिमिलरली some polling stations will be managed entirely by our PWD staff, or they will be ready to welcome the voters. And आपके माध्यम से ये भी हम लोग कहना चाहते हैं, और कमीशन में बहुत ही इसके बारे में सेंसिटिविटी है, कि जो PWDs हैं वो एक्चुअली बहुत मायने में हमसे बहुत ज़्यादा एबल्ड हैं। उनका चिंतन, उनका भाव, उनके इमोशंस, उनकी सहनशीलता, बहुत चीज़ हम लोगों से ज़्यादा है। So what they require is essentially the equity and equal opportunities, not mere sympathy. And therefore, we are very, very conscious that we will cover all the PWDs, mark them. I'll give you a figure as to how much we have marked all India, and you would be happy to know that. I'll come to that slowly. Now, maybe at the cost of repeating, I would reiterate, if we as the Election Commission team put in such concerted efforts to ensure a polling station within 2-kilometer reach for voters, replete with all kinds of facilities, I would appeal to the voters to value their hard-earned right to franchise and come out to vote in maximum numbers, so that Matdata Rupi Indradhanush har booth par dikhai de. Now I come to, friends, the postal ballot facility for the absentee voters, because it would be happening first time in these elections. Commission has decided and introduced this in the last round of elections, that 80 plus age voters, PWDs and COVID infected voters, we would provide a form 12D, and if they are willing, if they want to come to the polling station, every effort would be made to make it very, very comfortable there, and we encourage it. But in case somebody is ill and is not able to come, the commission would go to their house and get the vote conducted. And जैसे पिछली बार एक दो जगह में ये सूचना मिली थी कि कुछ शिकायत मिलने की उम्मीद थी कि आपने वोटर्स का उनका कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है घर पर, उसको खत्म करने के लिए भी एवरी एंटायर प्रोसेस वुड बी वीडियोग्राफ्ड। साथ में कैंडिडेट्स के एजेंट्स को पहले से ही सूचित किया जाएगा कि किस दिन वोट लेने जाएंगे, वो साथ में जाएंगे, जा सकते हैं, एंड एवरीथिंग वुड बी वीडियोग्राफ्ड। So, without compromising the secrecy of vote, the facility of voting would be extended right from the comfort of their home. And you would be happy to know
in the entire country, there are 1.82 crores voters who are 80 plus. And you would further be happy to know there are 100 plus voters, centenarians, who are crossing 2.5 lakhs. Imagine that they're all part of our voter list. And we are so happy, so privileged to serve them better. Actually, किसी भी सोसाइटी में अगर हम एल्डर्स की देखभाल नहीं करते, उनको सम्मान नहीं दे सकते, तो इट्स नॉट ए राइट वे ऑफ आवर ह्यूमन बिहेवियर. तो हम लोग इसके बारे में बहुत सजग हैं और वोट की सीक्रेसी को पूर्णतः अक्षुण्ण रखते हुए उनके घर से वोट भी लेंगे अगर उन्हें इस बात की जरूरत होगी. Similarly, for PWDs, all the facilities starting from a volunteer to the wheelchair, if they require, would all be available at the booths. And again, to give you another interesting figure, there are 82 lakhs PWDs also who are marked in our voter list. And our entire effort is to make it inclusive and accessible. The Commission puts a whole lot of emphasis on making the elections truly participative, accessible for all our PWD brothers and sisters. Friends, I would just briefly touch the technological interventions. There is a whole lot of technology which will go into the elections, starting from for the ease of the voters and also for managing the inducement-free elections. Firstly, the voter helpline, you can see all kinds of informations in that, including your booth location, including the candidates, the informations about them and results. The another interesting and very important application is a C-Vigil application. What it does, any voter can make any complaint, and the moment he either he can take a picture from his mobile, he can write on a paper and take a photo, or he can type. And the moment he sends a message to C-Vigil, his longitude and latitude is automatically fed. Means his location, geolocation is known. And our team will reach within 60 minutes flat and would answer in 90 minutes. So what we are saying, what we are appealing through you to our voters, कि अगर कहीं भी कोई भी दुरुपयोग मनी पावर का, नारकोटिक्स का, ड्रग्स का, किसी भी तरीके का उनको नजर आता है, किसी भी पोलिंग पार्टी का कोई चीज गलत नजर आती है, तो कृपया उसको C-Vigil पे डालें. कुछ स्टेट्स ने बहुत इफेक्टिवली, सशक्त तरीके से इसको यूज किया, एंड दिस इज बिकमिंग एन इंटरेस्टिंग टूल इन आवर हैंड्स टू कंट्रोल द menace of any kind of money or the power or misuse by anybody. So please, again I would request that agar nagrik vigilant hai, so vigilant nagrik, C is the citizen become vigilant, and it is your election. If you would help us, we will guarantee that in 100 minutes you get a written response on the same mobile number from which you make a complaint. Similarly, PWD app also gives the opportunity to the PWD voters to go there and even register for facilities or facilitation at the booth. उनको कुर्सी चाहिए, उनको कोई मदद चाहिए, वो वॉलंटियर तो मिलेगा ही, वो सब इस पर पहले से बुक कर सकते हैं. Another interesting and very, very critical application is KYC, Know Your Candidate. तो कैंडिडेट का पूरा एफिडेविट, which will give all his assets and liabilities and all the criminal background, if any, would be made available to the voters. Through this app of Know Your Candidate, अगर किसी भी कैंडिडेट की कोई भी राजनीतिक कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि है, तो वो इस पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगी क्या अपराध है उनके ऊपर में, किस तरीके की FIR है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, केस की क्या स्टेटस है. एंड इन एडिशन, एज यू ऑल नो, 3 times they will have to publish in the newspapers. तो कमीशन का काम है कि अगर की क्रिमिनलिटी इन द इलेक्शंस, इन द पॉलिटिक्स गेट्स एलिमिनेटेड, रिड्यूस्ड, इफ नॉट एलिमिनेटेड, उसके लिए हम
ऐसी व्यवस्था करें कि कम से कम उसकी पृष्ठभूमि वोटर के सामने स्पष्ट दिखाई दे, then it is voter's choice. We enable the voter to take an informed choice. It's part of the disclosure. And all the assets, liabilities would also be known in this. So your constituency, your candidate, his background, financial, criminal, if any, would all be known through the Know Your Candidate. So please use this. Not for voters, for the candidates also, there is an application called Suvidha. जितनी भी एंटाइटलमेंट्स उनके हैं वो सब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एंड वी हैव डायरेक्टेड कमीशन इज डायरेक्टेड दैट इट विल बी सर्व्ड टू द कैंडिडेट्स ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस सो दैट देयर इज नो बायस whosoever locks in first, whosoever applies for a ground or for any facility first, and if that is a limited space, he or she will be given the candidate first. Friends, we also had a detailed interaction with the enforcement agencies, and to just tell you that no cash would move in the poll-going states between after 5 o'clock till 10 o'clock in the morning. Banks have been directed कि कोई भी कैश का मूवमेंट अपनी वैन के थ्रू नहीं करेंगे. ऐसा देखा गया है कि उसी वैन को यूज करके कुछ ना कुछ लोग कोशिश कर सकते हैं कि उसमें कैश मूव हो इलीगल, उसको मना किया गया. एयरपोर्ट्स वुड बी अंडर वॉच. द जीएसटी वुड कीप ए ट्रैक ऑन ऑल द ई-बिल्स टू फाइंड आउट that no consumer goods, there is no spurt in supply of consumer goods in that particular state for distribution as a freebie or as an inducement. All the borders would be sealed in these states. There would be there would be strict watch on any kinds of money or cash or drugs or that kind of thing. Friends, during this phase in the communication age, there are a whole lot of misinformation and fake news and narratives which get generated. So through you again, we request the voters to be vigilant, to at least see that पिछले कितने इलेक्शन में सेम न्यूज़ उसी प्रकार से चल चुकी है, उसको कम से कम आगे बढ़ाने से पहले अपनी थोड़ी सी विजडम लगा के सोच लें कि ये सच हो सकती है कि नहीं. फेक नैरेटिव्स में आगे बढ़ाने में मदद ना करें. अगर लगता है ठीक है तो जरूर आगे बढ़ाएं, उनका हक है. But we have established social media teams in the CO office and all the district magistrates and SSP's offices to keep a strict watch. And if anybody tries to create rumors or create fake news or news which are objectionable, the appropriate action the teams would take as mandated under the law. So, having given you an overview of the efforts which have gone into the entire preparation, now I would come to the main thing for which you are waiting. And to tell you first, the term of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is expiring on 8th of January 2023. And there are 68 ACs across 12 districts, and with the specific seats reserved for SCs and STs. So out of 68, 17 seats are reserved for SCs and 3 seats are reserved for STs. As you see the data on this slide, the forthcoming legislative election, our teams would be ready to serve more than 55 lakh electors, of whom about 67,000 are service voters and 56,000 in the state of Himachal would be PWDs. And you would be happy to know that there are 1,184 voters who are 100 plus. And we have reached everybody's house as a mark of respect towards them. And you will be happy to know, and it's a motivational thing for our young voters. There are voters who have voted in all elections since 1950. All, including the local body elections. And there are 1,184, and many of them come to the booth. They say we do not need the Form 12D, we'll come to the booth. So they are really
the source of inspiration for all of us. And हमने उनको सबके घर में एक चिट्ठी भेज के अपने BLO साहब के थ्रू या अफसर्स के थ्रू सबको सम्मानित भी किया और आभार भी प्रकट किया कि आप ही की प्रेरणा से बाकी लोग भी आगे बढ़ के वोट दे सकें. Friends, there are 1.2 lakh voters who would be 80 plus in Himachal, and 1.86 lakh voters would be first time voters between 18 years and 19 years. And these are the ones with whom we are very, very focused way we are connecting with all of them by organizing large number of events in their colleges and institutions. As you know, the amendment in section 14 enabled us to register voters in the 4 qualifying dates. तो आप इसको अगर मैं ऐसे समझाऊं कि जो लोग 1 जनवरी अगर ये अमेंडमेंट ना होता तो 1 जनवरी 22 को जो भी लोग 18 इयर्स के हो गए वही वोटर बन पाते. उसके बाद में 1 जनवरी 23 की क्वालिफाइंग डेट से वोटर बनते. बट बिकॉज ऑफ दिस चेंज in Himachal alone, those who were born after 1st January 22 but before October 22, 43,173 additional voters have been enrolled and they would be able to participate in this festival. This is only because of the amendment which happened, and you can extrapolate it and see because of these 4 changes. And now what we have done and what will happen in the SSR now, even if somebody is 17 and is going to be 18 next year till October 2023, in the new SSR which is coming in the entire country, they can apply in advance. And we take the responsibility of keeping that application with us and making him or her the voter the date on his or her birthday. And our officers will send them a kit, a welcome kit for the new voters, which will contain the EPIC card, which will contain how to vote, which will contain about how the EVMs function, which will contain the the website links to where they can educate themselves about the election process. We, through you, call upon all voters in Himachal to come out and vote. Their participation should take inspiration from the elders who are there in that state, and our fervent appeal that all stakeholders maintain COVID appropriate behavior. Friends, आयोग ने हमेशा मीडिया को चुनावी प्रक्रिया में अपना सबसे बड़ा एलाई माना है. It's a kind of a natural ally. That is why first time we come here and announce. There is nobody who comes to know of this. मैं दोहराना चाहूँगा कि आपके माध्यम से सभी वोटर्स को एक बार पुनः अपील करेंगे. And the exact schedule for the state would be as it's being shown on your slides. वो दे दो notification की dates दे दो. If it is visible, the date for the Gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. So again, through you with the appeal to all the voters on behalf of all of us to come and vote in the state of Himachal, I hand over to Shefali ji back. Thank you. We'll take questions. नीरज, आप शुरू करें. माइक दे दें यहाँ फर्स्ट रो में. नीरज. प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 25 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन. 17 अक्टूबर से नामांकन शुरू.
एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। हिमाचल प्रदेश में 17 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो जाएगा। 25 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है और 12 नवंबर को चुनाव होंगे विधानसभा। हिमाचल के लिए वोट डाले जाएंगे। एक बड़ी खबर, जो इंतजार था हिमाचल विधानसभा के चुनाव को लेकर, वो इंतजार खत्म। 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, 12 नवंबर को विधानसभा की 68 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। तारीखों का ऐलान हो चुका है, बिगुल बज चुका है, सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, सियासत के दिग्गज मैदान में हैं। 12 नवंबर के लिए सबकी तैयारियां शुरू हो गई हैं कि 12 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा अपने प्रत्याशियों के लिए वोट डलवाएं। तो एक बड़ी खबर, और 8 दिसंबर को चुनाव का नतीजा आएगा। 8 दिसंबर को पता चल जाएगा कि हिमाचल की जनता ने किसको अपना विधायक बनाया है और किसको अपना मुख्यमंत्री बनाया है। शायद मुख्यमंत्री के बारे में पता चल जाए या ना चले, लेकिन 8 दिसंबर को यह पता चल जाएगा कि किसको विधायक बनाया है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 17 अक्टूबर से नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 17 अक्टूबर से नामांकन दाखिल होंगे। 25 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 8 दिसंबर को चुनाव का रिजल्ट आएगा। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 44 सीटें इस वक्त बीजेपी के पास हैं। 21 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे और 3 सीटों पर अदर निर्दलीय और सीपीएम के उम्मीदवार। अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पर्चा दाखिल करने की तारीख 17 अक्टूबर से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक चलेगी। 17 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 25 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। 12 नवंबर को चुनाव के लिए वोट डाला जाएगा 68 विधानसभा सीटों के लिए और 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक अहम खबर, उस चुनाव की तारीखों का ऐलान जिससे गरमाएगी ठंड के इस मौसम में पहाड़ की सियासत। एक बड़ी खबर, चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। हिमाचल में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 10 दिसंबर को रिजल्ट, 8 दिसंबर को माफ कीजिएगा, 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। 17 अक्टूबर से हिमाचल प्रदेश में नामांकन दाखिल किए जाएंगे और 25 अक्टूबर तक नामांकन का आखिरी दिन है। 25 अक्टूबर नामांकन का आखिरी दिन। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ है। प्रदीप, चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं। 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बिल्कुल नासिर, देखिए इसका इंतजार किया जा रहा था क्योंकि जैसे ही सुबह इसकी जानकारी बाहर आई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन बड़ी बात इसमें यह रही कि केवल हिमाचल प्रदेश के चुनावों का ही ऐलान किया गया है। हालांकि जो पूर्व की परंपरा रही है उसमें गुजरात हिमाचल के चुनावों की तारीख एक साथ जो है उसका ऐलान होता था, लेकिन जो हिमाचल के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर मौसम एक बड़ा कारण रहता है चुनावों के दौरान, ऐसे में जो ट्राइबल जिले हैं, जो रिमोट एरिया हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, उनकी वजह से जो है यहाँ पर समय रहते 15 नवंबर से पहले वोटिंग करवानी पड़ती है। तो जो आज शेड्यूल जारी हुआ है, 17 अक्टूबर को नोटिफिकेशन हो जाएगी, यानी नॉमिनेशन की प्रक्रिया, नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो विड्रॉल है, अंतिम डेट उसके लिए जो लास्ट डे है नामांकन के लिए वो 25 अक्टूबर है और उसके बाद 27 अक्टूबर को स्क्रूटनिंग की जाएगी, छंटनी होगी जो नॉमिनेशन हुए होंगे और किसी ने नाम वापसी लेनी होगी तो वो 29 अक्टूबर को ले सकते हैं और 12 नवंबर को वोटिंग होनी है। तो मतलब जो हिमाचल प्रदेश का जो मौसम के हिसाब से जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए चुनाव आयोग ने ये एक दौर में, यानी एक चरण में हिमाचल के चुनाव होने वाले हैं, इसका ऐलान कर दिया है। तो आप कह सकते हैं कि सियासी पारा वो लगातार बढ़ सकता है
और इसके साथ साथ ही बिल्कुल जो जी बिल्कुल प्रदीप, बड़ी खबर, बड़ी अहम खबर हिमाचल प्रदेश के लिए। आपसे हम बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। 8 दिसंबर को 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में एक ही चरण में चुनाव होगा। मौसम ज्यादा खराब हो उससे पहले पहले वोटिंग करवाई जाना लाजमी हो जाता है हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों के लिए। 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। 68 विधानसभा सीटों के लिए गहमा गहमी शुरू। कमल कौशिक भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। कमल, और क्या कुछ जानकारी है? अब एक बार फिर से हिमाचल की रणभूमि में खबरें अभी तक लगातार जुड़ा हुआ था, अब और ज्यादा तेजी के साथ हिमाचल के हर क्षेत्र में खबरें अभी तक की टीमें पहुंच रही हैं। देखिए नासिर, इसी अनाउंसमेंट के साथ आदर्श आचार संहिता हिमाचल प्रदेश में जारी हो चुकी है। आज हम जिक्र भी कर रहे थे और खबरें तक हमेशा जानकारी सटीक भी देता है और सबसे पहले देता है। हमने बताया था कि आज दोपहर को लगभग ऐलान हो जाएगा। हमने ये भी कहा था कि जयराम कैबिनेट की आज अंतिम बैठक है, वो बैठक भी शुरू हुई और खत्म भी हुई, वो जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। और अब 12 नवंबर को चुनाव की तारीख आ गई है। नासिर, इसका इंतजार लगातार किया जा रहा था। ठीक ऐसा ही हुआ जैसा 2017 में हुआ था। नवंबर के महीने में चुनाव हुए थे और अब नवंबर के महीने में ही 2022 में चुनाव हो रहे हैं और दिसंबर में नतीजे सबके सामने होंगे कि पहाड़ का राजा कौन होगा और इस रण को कौन जीतेगा। ये सबसे बड़ा सवाल, इसका जवाब 8 दिसंबर का दिन दे देगा। हिमाचल की जनता के लिए बहुत बड़ी परीक्षा इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने वालों की पहचान हिमाचल की जनता को करनी है। वोटर्स हिमाचल की बहुत समझदार है, लोग समझदार है, पढ़े लिखे हैं और अब जितने भी नेता हैं वो इस बार किस तरह से किन मुद्दों के तहत चुनावी मैदान में उतरेंगे वो देखने वाली बात है। नासिर, हमने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली हो रही है ये चुनाव अनाउंसमेंट के ठीक पहले हो रही है, इसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन 1-2 दिन में चुनाव का ऐलान कर देगा और ठीक ऐसा हुआ। आज इलेक्शन कमीशन ने पूरी तैयारी कर ली और यह भी जानकारी दर्शकों को देना जरूरी है कि इससे पहले शिमला में भी हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन कमीशन की टीम भी आई थी। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने पूरा ब्यौरा लिया था, सभी से बातचीत की थी, सभी जितने भी दल हैं हिमाचल प्रदेश में जो एक्टिव हैं उनसे भी बातचीत की गई थी। कांग्रेस ने कहा था कि जल्द से जल्द चुनाव की अनाउंसमेंट होनी चाहिए, ऐलान होना चाहिए। ठीक केंद्रीय चुनाव आयोग ने यही किया है। 12 नवंबर के महीने में चुनाव करवाने की बात की गई है। जैसा कि आपने जिक्र किया था कि मौसम खराब ना हो क्योंकि बर्फबारी काफी ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हिमाचल प्रदेश में होती है, वहां दिक्कतें परेशानी होती है, लेकिन यहां पर चुनाव आयोग ने सभी बातों का ध्यान रखा है। और देखिए नासिर, ज्यादा समय नहीं है, अब पार्टियों के लिए भी लिस्ट जारी करनी होगी। 17 अक्टूबर की तारीख नामांकन नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। 25 अक्टूबर आपने बताया था, तो ज्यादा समय नहीं है। अब देखिए आप, आज 14 अक्टूबर, 15, 16, 17 इन 3 दिनों में या अगले 6 से 7 दिनों में पार्टियों को अपने पत्ते खोलने ही होंगे। पहली लिस्ट तो जारी करनी होगी 3 से 4 दिनों में, उसके बाद मान मनोबल और फिर आप देखिए क्या कुछ इस राजनीति में देखने को मिलता है। बिल्कुल बड़ी खबर, बड़ी बात, बड़ी जानकारी। कमल, 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को चुनाव का रिजल्ट आएगा। अगर पिछली बार की बात की जाए 2017 की, तो 9 नवंबर को वोट डाले गए थे 2017 में और 18 दिसंबर को रिजल्ट आया था। और अगर बात की जाए इस चुनाव की तो बहुत अहम चुनाव है। एक तरफ हो रही है बात रिवाज बदलने की, एक तरफ हो रही है बात रिवाज वही रहेगा और आम आदमी पार्टी भी मैदान में। कमल, इस बार क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा या मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का ही रहेगा? देखिए नासिर, जब कांग्रेस और बीजेपी से पूछा जाता है तो दोनों की तरफ से यही कहा जाता है कि मुकाबला तो हम दोनों के बीच है, यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। दोनों पार्टियों में से कोई भी आम आदमी पार्टी को बिल्कुल तरजीह ही नहीं देता है, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने वाली बात है, होगा नहीं होगा, क्योंकि पंजाब का जो इंपैक्ट है, क्योंकि ज्यादा दूरी नहीं है, पड़ोसी राज्य है पंजाब हिमाचल प्रदेश का, तो ऐसे में जो वहां पर इंपैक्ट है वो हिमाचल प्रदेश पर पड़ेगा। क्या हिमाचल की जनता पंजाब को देखकर यहां पर मन बनाएगी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को, उम्मीदवारों को एक मौका दिया जाए, जैसे अरविंद केजरीवाल कहते हैं? देखने वाली बात है। लेकिन नासिर, एक बहुत खास बात है हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए 1184 ऐसे उम्मीदवार हैं, मेरे पास डेटा भी है और साथ ही इलेक्शन कमीशन ने ये शेयर भी किया है कि 1184 मतदाता ऐसे जो 100 साल के पार है नासिर, और उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई है हर इलेक्शन में, अभी तक जितने इलेक्शन हुए हिमाचल प्रदेश में, और उनके लिए खासकर उनको तवज्जो दी जाएगी। वो युवाओं के लिए
एक बड़ा उदाहरण बने, मिसाल पेश करें कि देखिए लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आज कहा, इसी से शुरुआत की कि त्योहारों का महीना है अक्टूबर और नवंबर, और ये एक बड़ा लोकतंत्र का एक त्योहार है जहां पर इलेक्शन होते हैं, वहां पर एक माहौल त्योहार जैसा होता है, वहां पर होर्डिंग्स लगते हैं, वहां पर लाउड स्पीकर्स होते हैं, नेता गली कूचों में आते हैं, लोगों से भी मिलते हैं। लोगों की अगर कहीं ना कहीं कोई भी अगर यहां पर पहचान बड़ी बनती है नेताओं के बीच में, तो वो तभी बनती है जब इलेक्शन आते हैं। लोगों की पूछ तभी होती है जब इलेक्शन आते हैं। इसलिए इसे लोकतंत्र का एक बड़ा पर्व भी कहा जाता है। इसमें भागीदारी के लिए इलेक्शन कमीशन ने बहुत प्रयास किए। नासिर, राजनीति से इतर में इलेक्शन कमीशन की कुछ बातों की और ध्यान दिलवाना चाहूंगा हमारे दर्शकों का, जो बातें कही गई हैं, क्योंकि तारीख का ऐलान हो चुका है, वो लगातार हम दर्शकों को बता रहे 12 नवंबर की है, लेकिन 100% महिलाएं वाले पोलिंग स्टेशन भी होंगे नासिर, ये बड़ी बात है, जहां पर महिलाएं होंगी, ये बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने कही है। अलग अलग वर्गों का ध्यान रखा गया है, जो दिव्यांग है, जो शारीरिक से थोड़ी दिक्कत परेशानी जिन्हें है, उनके लिए अलग से सुविधाएं होंगी। एक 12D फॉर्म भी भरा जाएगा, यह भी ऐलान किया गया है। यह भी जानकारी इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज दी है। इलेक्शन कमीशन ने पूरी तैयारी के साथ अनाउंसमेंट की है हिमाचल प्रदेश के चुनाव की। नासिर, एक बात और अच्छी है, हिमाचल प्रदेश में ज्यादा सेंसिटिव जोन नहीं है वोटिंग के लिहाज से, इसलिए सिंगल फेज में एक ही चरण में चुनाव करवाने का ऐलान हुआ है, और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि वहां पर लड़ाई झगड़े के बहुत ही कम मामले सामने आते हैं। हिमाचल में एक और दिलचस्प बात है कि हमारे देश के जो पहले मतदाता हैं, जिन्होंने देश में जब भी चुनाव हुए थे, पहली बार जब देश में चुनाव हुए और पहला वोट डाला था, वो भी हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं, श्याम शरण नेगी। बिल्कुल। तो और सबसे अच्छी बात है कि वो जीवित हैं, और ये भी एक बड़ी बात होगी, उनकी भी 100 से ऊपर की उम्र पहुंच चुकी है, 105 साल के ऊपर के हैं वो। नासिर, हमेशा इलेक्शन कमीशन जरूर जाता है नेगी साहब के पास, जो वहां पर चुनाव आयोग के अधिकारी हैं वो जाते हैं, वो खुद उनके पास जाकर वोट डालने की अपील दूसरों से करवाते हैं। वो खुद तो डालते हैं, लेकिन जो आपने जिक्र किया नेगी साहब का, वो हमेशा वोट डालने के लिए जाते हैं पोलिंग बूथ पर, और युवाओं के लिए वो भी एक बड़ा उदाहरण पेश करते हैं कि आप घरों से निकलिए। इलेक्शन कमीशन ने यही कहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स जरूर भाग लें, और इलेक्शन कमीशन की हमेशा से कोशिश रहती है। और अगर ज्यादा यहां पर रिकॉर्ड तो मतदान होता है तो क्या उसका असर होता है नतीजों पर, नासिर आप बखूबी जानते हैं। जब भी हम कवरेज करते हैं किसी भी इलेक्शन की, तो हम वोटिंग परसेंटेज का जिक्र जरूर करते हैं कि इसका असर क्या होगा चुनाव नतीजों पर। सत्ता पक्ष को फायदा होगा, या जो विपक्ष में था उसे फायदा होगा सत्ता में आने के लिए। इस तरह की चर्चाएं भी काफी चलती हैं, और इसलिए ज्यादा वोटिंग होती है तब समीकरण समझ नहीं आते हैं नासिर, किसकी तरफ क्या होगा। लेकिन इस बार मुद्दों की भरमार भी है, मुद्दे कई हैं, और बीजेपी के पास भी बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिससे कि वो सत्ता में वापसी करने के सपने देख रहे हैं। विपक्ष के पास मुद्दे ऐसे हैं, वो कह रही कि सत्ता से बेदखल बीजेपी को करेंगे। आम आदमी पार्टी कह रही कि दिल्ली का उदाहरण हमारे पास है कि हमने कैसे दिल्ली को एक बेहतर राज्य बनाया है, राजधानी बनाया। बहुत सारे लोगों को इस बात का भी था कि गुजरात की चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होगा, तो ये कहीं ना कहीं गुजरात के नेताओं के लिए और लोगों के लिए फिलहाल के लिए एक मायूसी वाली बात हो सकती है कि अभी गुजरात की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इसके पीछे क्या वजह रही हो वो अलग बात है, लेकिन एक वजह ये आ रही है कि फिलहाल हिमाचल के चुनाव को निपटा देते हैं, क्योंकि यहां पर मौसम का मसला रहता है। आपने ठीक कहा, यही एक बड़ा कारण है कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव जल्दी करवाना। कमल, मैं आता हूं आपके पास। कमल, हमारे साथ सुरेश कश्यप जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के अध्यक्ष, हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष। नमस्कार सुरेश जी, खबर अभी तक पर स्वागत है आपका। नमस्कार। और सर, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आप लोग तो पहले से ही मैदान में हैं, अब किस तरह से देखते हैं? बहुत जल्दी है चुनाव, 12 तारीख को वोट डाल दिए जाएंगे। अब देखिए, मैं समझता हूँ चुनाव का तारीखों का ऐलान और उसका इंतजार भी हो रहा था। आज जो है इसकी घोषणा हो गई है, लेकिन जहाँ तक तैयारियों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही तैयार है। और वैसे तो पिछले 5 वर्षों में ही लगातार प्रदेश में हमारी सरकार ने और जो हमारे संगठन ने निरंतर जनता के साथ संवाद और निरंतर जनता के बीच में रहे, और मैं समझता हूँ किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। हमने काम किया है, उस काम के बल के ऊपर आज हम देख भी रहे हैं जिस प्रकार का माहौल प्रदेश में बना है, और जो भी कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं उसमें भारी संख्या में जनता का जो है समर्थन मिल रहा है। तो किसी प्रकार की चिंता की कोई बात नहीं है। सुरेश जी, अब एक बड़ी चीज ये होती है कि किसको टिकट दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। इस रणनीति पर बीजेपी कहां तक पहुंची है और कितना आसान है आपके लिए टिकटों का बंटवारा? देखिए,
अभी शीघ्र ही हमारी चुनाव समिति की बैठक होगी, उसके बाद कैंडिडेट्स का ऐलान होगा और कहीं पर भी कोई दिक्कत मैं नहीं समझता आने वाली है। हम मजबूती के साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ डटे हैं, मिलकर आगे बढ़ेंगे और जो चुनौती है इस चुनौती का पार करेंगे और हम चुनाव को जीतेंगे। मेरे सहयोगी कमल भी हैं मेरे साथ, वो भी आपसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं। जी कमल। चलिए लगता है अभी सुरेश जी एक और मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मौजूदा विधायकों में किसी का टिकट कट सकता है इस तरह की भी, क्योंकि आपने इस बार बताया जा रहा रणनीति बनाई है कि ज्यादा भीड़ लाई जाए, ज्यादा लोग इकट्ठे किया जाए, मजबूती दिखानी पड़ेगी टिकट के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, हमने कहीं पर भी ये बात नहीं कही है। अच्छा। कि लोगों को लेकर आओ, हम कब टिकट देंगे। जी। भारतीय जनता पार्टी ने और हमने शुरू से इस बात को कहा है कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, जो बेस्ट परफॉर्मिंग होंगे उनको टिकट दिया जाएगा और उनके साथ पार्टी खड़ी होगी, हम चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित करेंगे। कहीं पर भी ऐसा कभी नहीं कहा गया कि आप भीड़ लेके आइए या किसी को किसी के पास जाने की आवश्यकता है या आने की आवश्यकता है। हमारी पार्टी बहुत साइंटिफिकली सर्वे के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर जो है टिकटों का आवंटन करेगी, कैंडिडेट का चयन करेगी और उनके साथ पार्टी खड़ी होकर चुनाव में हम जीत हासिल करें। शुक्रिया खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए, शुभकामनाएं सुरेश कश्यप जी चुनाव के लिए। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान, हिमाचल प्रदेश में इंतजार था, पहाड़ पर इंतजार था, सरकार यही रहेगी या नहीं बनेगी, यह बड़ा सवाल है। सरकार यही रहेगी या नहीं बनेगी, रिवाज बदलेगा या फिर वही रहेगा? बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश की चुनाव की तारीख को लेकर, हिमाचल चुनाव आयोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, चुनाव प्रक्रिया को लेकर शाम 5 बजे हिमाचल चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमल कौशिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी। कमल, अब और मजबूती के साथ की अब ये तारीखें तो आ चुकी हैं, अब व्यवस्था किस तरह से की जाए, कहां पर किसकी तैनाती हो, कहां पर किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं, इसको लेकर अब हिमाचल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए नासिर, आपने सही कहा कि राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी अब ज्यादा बढ़ जाती है। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने आकर राज्य चुनाव के अधिकारियों के साथ सबसे पहले बैठक की थी। जब शिमला में भी वो मीटिंग हुई थी, हमने उस पर भी नजर दौड़ाई तो तब भी जानकारी निकलकर सामने आई थी कि राज्य चुनाव आयोग ने कहा था कि पूरी तैयारी हमारी है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में जो बड़े पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जाकर कैसे पोलिंग बूथ बनाना है, कैसे लोगों को पोलिंग बूथ पर आकर वोट डालने के लिए जागरूक करना है, ये कार्यक्रम बहुत पहले से चल रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग एक एक करके पूरा ब्यौरा देगा। शाम 5 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्य चुनाव आयोग की होने जा रही है, उसमें ये बातें बताई जाएंगी कि कैसे इस चुनाव को निष्पक्ष तरीके से और किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे इस चुनाव को संपन्न करवाया जाएगा। ये राज्य चुनाव आयोग की बड़ी जिम्मेदारी है। केंद्रीय चुनाव आयोग के जो भी इंस्ट्रक्शंस आए हैं, जो भी निर्देश आए हैं, उनकी पालना भी यहां पर की जाएगी। लेकिन नासिर, मैं बात करना चाहूंगा स्क्रूटनी की भी और नॉमिनेशन की, क्योंकि हमारा सीधा उस पर ही फोकस रहता है। 17 अक्टूबर को आपने बताया था और 25 अक्टूबर को आखिरी तारीख नामांकन की स्क्रूटनी होगी और फिर नाम वापस भी ले जाएंगे। इस दौरान का जो राजनीतिक घटनाक्रम होता है नासिर, बड़ा दिलचस्प होता है। आप जानते हैं कौन किस पार्टी में जा रहा है। जितनी अदला बदली हमने पहले देखी है वो एक उदाहरण था, छोटा सा उदाहरण। हमने ये भी देखा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता जो हिमाचल प्रदेश में बड़ा कद रखते हैं, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। जो वर्किंग प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश में, हर्ष महाजन, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के विधायक थे, देखिए आप विधायकों की संख्या कितनी थी, और उसमें से 2 भी छिटक गए आपके, वो बीजेपी में शामिल हो गए। उधर कांग्रेस ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो सब कुछ नहीं कर पाई जो बीजेपी कर रही है। नासिर, इन तमाम चीजों को देखकर ये लगता है कि बीजेपी ने पूरी रणनीति पहले से बना ली थी कि कैसे अपनों से ही घिरे कांग्रेस पार्टी। ये एक बड़ी कमी है और उस कमी को पकड़ लिया है बीजेपी ने। इस पर मैं जरूर गौर करने वाला हूं और इस पर हम चर्चा भी करने वाले नासिर, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रियंका गांधी आज ही सोलन में आई। आज उस मंच पर काफी नेता दिखाई भी दिए हैं, लेकिन उसके बाद जब लिस्ट आएगी, क्या यही नेता एक सुर में पार्टी की एकजुटता की मिसाल देंगे, क्या बात करेंगे, ये बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस क्यों था नासिर? क्यों 10 दिनों में, 15 दिनों में इतनी बार हिमाचल प्रदेश आकर बिलासपुर आए, चंबा भी इन्होंने जनसभा को संबोधित किया, ऊना में भी संबोधित किया और एक बहुत लंबा भाषण उन्होंने दिया, कई बातें कही है, पिछले कई दशकों का जिक्र किया, पिछली सरकारों पर निशाना साधा और एक रणनीति बता दी थी। एक फेस सबसे बड़ा है बीजेपी के लिए, वो है
प्रधानमंत्री बिल्कुल। नरेंद्र मोदी। दूसरा फेस है जयराम ठाकुर। लेकिन कांग्रेस के पास कितने फेस हैं, ये निशाना साधते हैं कांग्रेस के विरोधी कि हर जिले में मुख्यमंत्री का दावेदार। बिल्कुल कमल, और बात करते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, और खबर यह है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है हिमाचल प्रदेश में। जो अभी हमारे साथ लोग जुड़े उनको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 68 सीटों के लिए 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 8 दिसंबर को चुनाव का रिजल्ट आएगा। 17 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 25 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। आखिरी दिन है 25 अक्टूबर नामांकन का। तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर।